Students, now I am going to discuss the use of galvanometer, and the galvanometer can be converted into voltmeter and ammeter, and so we can say that galvanometer is used in as a galvanometer, as a ammeter, as a and as a voltmeter. तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर. तो एट फर्स्ट हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर. एट फर्स्ट, what is the ammeter? Ammeter is an instrument that is used to measure the electric current, and for this, suppose there is an electric circuit. It contains a resistance R and a battery of EMF E, an internal resistance R, and hence the current I in the circuit is I ampere. And if you want to measure the current, so you have to connect the ammeter in series of the circuit. Means इसमें कहीं भी हमें यहाँ या यहाँ कहीं भी ammeter को connect करना होगा in series. This is the series connection of the ammeter. Ammeter, the symbol of ammeter is this. And in series connection, suppose this I is equal to E divided by total resistance R plus R. So this is the I, and this I can be calculated by this instrument. And if this instrument has resistance, अगर इस instrument का भी अपना resistance है अगर, तो क्या होगा, यहाँ जो total resistance है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी भी अपनी resistance है, और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी. यानी जिस इंस्ट्रूमेंट को मैंने मेजर करने के लिए लगाया वो करंट जो शो करेगा वो कम करंट शो करेगा क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस ऑफर भी कर दिया है. इसलिए हम कहते हैं कि फॉर द आइडियल अमीटर रेसिस्टेंस शुड बी जीरो. तो बट इट कैन नॉट बी जीरो, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड. इसको जीरो तो नहीं, लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं. तो पहले ही प्रॉब्लम है कि हमें जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इसकी रेसिस्टेंस कम होनी चाहिए. एंड सेकेंड इज दैट द गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. हमने इसको पहले भी बताया था. और इसलिए सेंसिटिव मीन्स क्या हुआ कि कम इलेक्ट्रिक करंट की ज्यादा डिफ्लेक्शन होना. तो इसकी जो मेजरमेंट हम माइक्रो एम्पियर के रूप में इसकी मेजरमेंट हो सकता है. इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन माइक्रो एम्पियर करंट से भी हो सकता है. तो इसलिए हमें इसके रेंज को बढ़ाना होगा. तो इन दोनों बातों पे हम ध्यान रखेंगे, यानी कि हमें रेंज को भी बढ़ाना है और रेसिस्टेंस भी कम करना है. तो हाउ कैन बी डन, इसको कैसे किया जा सकता है, चलिए देखते हैं. हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये दिस गैल्वेनोमीटर, एंड it has resistance Rg. Its resistance is Rg, and a low resistance S is connected parallel to this R. एक लो रेसिस्टेंस S को इस Rg के पैरेलल कनेक्ट किया, और अब ये पैरेलल कनेक्ट करने के बाद जो टोटल रेसिस्टेंस होगा 1/R इज इक्वल टू 1/Rg plus 1/S. This is the S, and this is the Rg plus S. This is the 1/R. So R is equal to Rg divided by Rg plus Rgs divided by Rg plus S. अगर हम ये कहते हैं कि S की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम अगर है, यानी Rg के कंपेरिजन में S की वैल्यू कम है, तो this S can be neglected here.
and this value is RGS divided by RG, and then RG will cancel out and hence you will get S. Thus we can say that for this R is approximately equal to S. यानी इसके लिए हम कह सकते हैं कि R की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली S के इक्वल होगी। यानी चूंकि अभी इस पूरे सिस्टम का रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई और वो लगभग इसके इक्वल हो गई अगर ये बहुत छोटा है तो। Thus we can say that by using a low resistance parallel to the galvanometer, and this low resistance parallel to the galvanometer is known as shunt, and this is shunt. So if the low resistance connecting parallel to the galvanometer, and this is known as the shunt, then this complete system is known as ammeter. तो इसको हम लोग ammeter कहेंगे. And now this can be used in this series because it has very low resistance, so it does not affect the electric current that can be measured. यानी उस इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट बहुत ही कम करेगा जिसको मेजर करना है. तो ये एक बात हो गई. दूसरी बात, यहाँ एक और चीज हम देखेंगे कि इससे हमको फायदा क्या हुआ वो देखते हैं. रेंज की बात करते हैं कि रेंज क्या चेंज कर सकता है. तो रेंज की बात करते हैं. तो सपोज कीजिए कि दिस करंट इज I is going to this ammeter, and at this point the current is divided into two parts. This is the IS and this is the IG, and you can say that I minus IG कर सकते हैं आप ऐसा भी. This is the I by the Kirchhoff's first law, junction law. यहाँ से I आया, IG आ गया, बचा I minus IG हुआ. अब now the potential difference between the two points is same because these are in parallel. So IGRG is equal to S into I minus IG. So this S is equal to IGRG divided by I minus IG, and this is the IGRG divided by I by IG. Now हम लोग डिनोमिनेटर दोनों में IG से डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू क्या आता है. यहां मैं लिख रहा हूं ये वैल्यू इस वैल्यू होगी S इज इक्वल टू IG कैंसिल RG डिवाइडेड बाय I by IG minus 1, and then we can write here this S is equal to RG divided by N minus 1, where N is equal to I by IG. अब यहाँ देखिए हम क्या करना चाहते हैं. अब यहाँ क्या हो गया कि हमें अगर ये कैलकुलेट करना है कि हमको कितना शंट लगाना चाहिए, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट. यानी सपोज कर लीजिए कि अगर कोई पहले से 1 एम्पियर मेजर कर सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, तो ये IG है. अगर हम 10 एम्पियर मेजर कराना चाहते हैं, इसको रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, तो I by IG इज 10, तो 10 टाइम्स बढ़ गया. पहले 1 था, अब 10 है, तो वैल्यू इज 10. 10 माइनस 1 इज 9, एंड RG की गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस पता होगा तो हम उसमें 9 से डिवाइड करेंगे और तब उसकी रेंज हम बढ़ा सकते हैं. तो यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिएगा कि आपको दिया हुआ है 550 ओम, और मैंने कहा कि 1 एम्पियर मेजर कर सकता है वो, और हमको 10 एम्पियर चाहते हैं, यानी 10 एम्पियर चाहते हैं. तो क्या लिखेंगे हम, S इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई N मीन्स I बाई IG. तो 10 by 1 is 10, 10 minus 1, 50 by 9. This is the 50 by 9 ohm is the value of the shunt used to increase the range of the ammeter by 10 times. So this can be used to this concept can be used to change the range of this ammeter as well as to convert the galvanometer into ammeter.